Hello everyone, hope you all will be fine. I am Rahul Nagpal. In this video, I will discuss about the electrolysis. What beta? Electrolysis. In previous videos, I have discussed about the various aspects of the Nernst equation. What is the Nernst equation? How can we calculate EMF using Nernst equation? How electrode potential changes due to change in the concentration of electrolyte? How we can calculate the value of Kc with the help of Nernst equation? And whenever there is a gaseous electrode, what are the substitutes of pressure over there? And finally at the end we have discussed the relationship of Gibbs free energy and electrode potential. Gibbs free energy change and electrode potential. This was all about the Nernst equation. That equation contains a lot of stuff. That portion contains a lot of stuff. Lot of numericals are there. Lot of different type of question can be asked from the Nernst equation in the CBSE board examination. So properly understand the videos, properly listen the videos, and then solve the question. If you are not able to solve the question, this directly means you are unable to capture the concept of that particular Nernst equation. Nernst equation is very important. हर साल या 2 साल बाद एक आधा क्वेश्चन आया रहता है बेटा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. नाउ इन दिस टॉपिक I will have to discuss the electrolysis. What is the electrolysis? Electro means electricity. But all the things are coming from its name. Split the name. Lysis means, lysis means breaking. Lysis means breaking, and in chemistry we call breaking as a decomposition. What decomposition? Decomposition must be of any substance. And if we're talking about the electrochemistry, and obviously decomposition of an electrolyte will take place. Decomposition of an electrolyte. What is meant by this? This is the electricity. This is the decomposition of an electrolyte. That's all. We are supplying electricity. And by supplying the electricity, decomposition of an electrolyte takes place. We are supplying what beta? We are supplying electricity. Yani ki what is the input? Input is the electricity and output is the product of the decomposition of an electrolyte. Yani ki chemical reaction. Input is electricity and output is chemical reaction. This is just the reverse of the electrochemical cell. What happens in the electrochemical cell? In electrochemical cell, we gain electricity as a output. But in this concept, we are supplying electricity. By supplying electricity, there is a net occurrence of the reaction. Means electrolysis and electrochemical cell are just opposite concepts. What happens in the electrochemical cell? Electricity हमें मिलती है. कहाँ से मिलती है? By the help of the chemical reaction. Various chemical reaction takes place in the different half cells. Oxidation half cell, reduction half cell. Oxidation half cell से reduction half cell में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं. क्या फ्लो करते हैं? इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं. और उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो कर जाता है? करंट फ्लो कर जाता है. क्या फ्लो कर जाता है बेटा? करंट फ्लो कर जाता है. This is about the electrochemical cell. ठीक है. क्या फ्लो किया? रिएक्शन हुई, इलेक्ट्रॉन फ्लो किया. हमारे पास तो रिएक्शन हुई. क्या हुई बेटा? रिएक्शन हुई. और नेट आउटपुट क्या मिला? नेट आउटपुट वी गेन इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. But in electrolysis, we supply the electricity. And by supplying the electricity, we do the chemical reaction. Various type of non-spontaneous chemical reaction can be converted into spontaneous one by the process of electrolysis. It is well known that water can't be decomposed into hydrogen and oxygen, but by the help of electrolysis, you have read in the class 10, by the help of electrolysis, you can convert into H2 and O2. Decomposition of water is a non-spontaneous process. By the process of electrolysis, you can convert the non-spontaneous chemical reaction into the spontaneous one. And electrolytic cell has
a strong base. Electrolytic cell has a strong base, and electrolysis is the basis of the electrolytic cell. Electrolysis is the basis of the electrolytic cell. Now define the electrolysis. How to define the electrolysis? Decomposition of electrolyte, decomposition of an electrolyte by passing electricity or electric current is called as what, beta? Is called as the electrolysis. Is called as what? Is called as electrolysis. Now, the process of electrolysis, how electrolysis takes place, and how electrolytic cell is different from the galvanic cell. How electrolytic cell is different from the galvanic cell. Now, the process of electrolysis, that is quite much important. Process of electrolysis. Process of electrolysis. Okay. Now, in process of electrolysis, what happens is, you will have to take a beaker, and beaker can either be of glass. Beaker can either be of glass or be of any non-conductor substance. It must not be of iron. Getting what I am saying? It must not be of copper. It must either be of the glass or any non-conductor substance, which must be non-conductor of electricity, which must be insulator, which must be an insulator. ठीक है? I have a jar, I have a beaker. You can have a jar, you can have a beaker. ठीक है? The substance which you use to electrolyze, you use to decompose, you need to decompose. Let us suppose a electrolyte AB. You want to electrolyze AB, means you want to decompose AB. AB is electrolyte. Let us suppose A positive, B negative, A positive, B negative. Make its aqueous solution, and put into it this jar. A positive, B negative, पानी में मिक्स करके इसको इसके अंदर भर दिया. ठीक है? उसके बाद दो इलेक्ट्रोड लगा दी. दो क्या लगा दी? इलेक्ट्रोड लगा दी. नो, इन इलेक्ट्रोड्स को क्या किया बेटा? अब करंट हमने सप्लाई करना है. ठीक है? और करंट सप्लाई करने के लिए बैटरी की रिक्वायरमेंट है ना. ठीक है? करंट मिलने नहीं वाला. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में करंट मिलता है. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में करंट मिलता है. यहां पे करंट हमें सप्लाई करना है. गेटिंग? यहाँ पे करंट हमें सप्लाई करना है और इसको तोड़ना है. इसको क्या करना है? तोड़ना है और इसका कुछ करवाना है अपन को. कैसे? ठीक है? मैंने बैटरी लगा दी. बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड से लगेगा वो पॉजिटिव बन जाएगा, एंड बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड से लगेगा वो क्या बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा. क्या बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा. रट्टा लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है. एनोड किसे बोलते हैं, कैथोड किसे बोलते हैं, अभी पता लग जाएगा. एनोड किसे बोलोगे, कैथोड किसे बोलोगे. जैसे ही करंट पास होगा ये भागेंगे. पॉजिटिव किसकी तरफ भागेगा? पॉजिटिव भागेगा नेगेटिव की तरफ. किसकी तरफ भागेगा? नेगेटिव की तरफ. और नेगेटिव किसकी तरफ भागेगा? नेगेटिव भागेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ. अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. पॉजिटिव भागेगा नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव भागेगा पॉजिटिव की तरफ. नेगेटिव क्या भागेगा? पॉजिटिव की तरफ. अब नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ भागेगा, वहां जाके अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बी बनाएगा. दिस विल बी द न्यूट्रल स्पीशीज. दिस विल बी द न्यूट्रल स्पीशीज. अब ये ए पॉजिटिव कहां भागेगा? ए पॉजिटिव कहां भागेगा? ए पॉजिटिव भागेगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ. ए पॉजिटिव कहां भागेगा? ए पॉजिटिव भागेगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ. और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन
के पास नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो इसको क्या दे देगा, इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देगा। क्या सप्लाई कर देगा, इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देगा, और ये भी बन जाएगी न्यूट्रल स्पीशीज। क्या बन जाएगी बेटा, न्यूट्रल स्पीशीज। ठीक है, अब मुझे कोई बता सकता है इलेक्ट्रॉन का गेन किसने किया? इलेक्ट्रॉन का गेन यहां हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज व्हाट, रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज व्हाट, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन के गेन को क्या बोलते हैं अपन, रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। यहां पे क्या हो रहा है, माइनस इलेक्ट्रॉन, हेयर इज द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट बेटा, हेयर इज द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। यहां पे इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है, here is the removal of electron, and removal of electron is called as what beta, loss of electron is called as what beta, oxidation। क्या बेटा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन कहाँ होती है, ऑक्सीडेशन तो एनोड पे होती है। ऑक्सीडेशन बी नेगेटिव कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है। यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बी नेगेटिव कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है। यहां पे जाके अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और बी में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां पे जाके ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और बी में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट, कहां गया, पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या गया, क्या दे दिया, बी नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है भाई, क्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। और ये जैसे ही इस प्लेट पे गया, इसने क्या डोनेट कर दिया, अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। क्या डोनेट कर दिया, इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसकी हो गई ऑक्सीडेशन। और सर ने तो बताया था ऑक्सीडेशन कहां होती है, ऑक्सीडेशन होती है एनोड पे। ऑक्सीडेशन कहां होती है, ऑक्सीडेशन तो होती है एनोड पे। ये इसकी रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन है, जो ये वाली रिएक्शन कहां हो रही है, ये रिएक्शन हो रही है एट एनोड, क्योंकि एनोड पे क्या है बेटा, एनोड पे हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और फिर ये वाली रिएक्शन भाई साहब कहाँ हो रही है, ये वाली रिएक्शन हो रही है कैथोड पे। कहाँ हो रही है, कैथोड पे। कहाँ हो रही है, कैथोड पे। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या है बेटा, कैथोड है ये इलेक्ट्रोड। ठीक है, यानी कि दिस इज द रिवर्स ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव रहता है, यहाँ पे एनोड पॉजिटिव है। 10th में भी आपने यही पढ़ा था, एनोड पॉजिटिव होता है। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बेटा एनोड पॉजिटिव नेगेटिव से कोई लेना देना थोड़ी है। एनोड वो इलेक्ट्रोड है जहां पे ऑक्सीडेशन हो गई, जहां पे क्या होगी बेटा, ऑक्सीडेशन होगी। तो याद रख लेना, जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, मैं एक ही ट्रिक से याद करवा लूंगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपको क्या याद रखना है, आंध्र प्रदेश। यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो एनोड है वो पॉजिटिव रहता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड क्या रहता है बेटा, पॉजिटिव रहता है। तो कैथोड क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इसका उल्टा लिख देना, कैथोड क्या रहेगा बेटा, नेगेटिव रहेगा। कैथोड क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इसका उल्टा लिख देना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इसका क्या करना बेटा, उल्टा लिख देना। बट कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। एनोड पे क्या होती है बेटा, ऑक्सीडेशन होती है। चलो आगे समझते हैं, आगे से इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं। वो क्या है बेटा जी, दो टाइप का चेंज अकर होता है। दो टाइप का क्या होता है बेटा, चेंज होता है। ठीक है, हाउ मेनी टाइप ऑफ चेंज आर देयर, 2 टाइप्स चेंज होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस में एक होते हैं प्राइमरी चेंजेस, एक होते हैं प्राइमरी चेंजेस, तो दूसरे होते हैं सेकेंडरी चेंजेस। एक होते हैं प्राइमरी चेंजेस और दूसरे कौन से होते हैं बेटा, सेकेंडरी चेंजेस। क्या होते हैं सेकेंडरी चेंजेस, ये देखो बेटा, ये बी इलेक्ट्रॉन लॉस करके न्यूट्रल स्पीशीज बना गया, बी बना गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल स्पीशीज। जो फर्स्ट चेंज अकर होता
होता है, जैसे ही आपका आयन समझते हो ना, ये आयंस है, ये पॉजिटिव वाला कैटायन और नेगेटिव वाला अनायन है, ये बताने की आई थिंक रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। जैसे ही आपके आयन मूव कर जाते हैं टुवर्ड द इलेक्ट्रोड, तो वहां पे जाके वो डिस्चार्ज होते हैं, वहां पे जाके वो रिलीज होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे जाके वो डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। जो कैटायन है, कैटायन कहां मूव कर रहा है, देखो बेटा कैटायन कहां मूव कर रहा है, कैथोड की तरफ मूव कर रहा है, और अनायन कहां मूव कर रहा है, एनोड की तरफ मूव कर रहा है। अनायन कहां मूव कर रहा है, एनोड की तरफ, कैटायन कैथोड की तरफ। वहां पे एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन करके ये क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट। अगर तो जैसे बी ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, बी एज इट इज चिपक गया वहां जाके, दिस इज द फर्स्ट चेंज दैट merely occurs by that exchange of electron by either gaining or losing of electron। जो फर्स्ट चेंज होता है ना बेटा, सिंपल चेंज, वो तो रहता है प्राइमरी चेंज। वो क्या रहता है बेटा, प्राइमरी चेंज। अगर ये फर्दर कुछ और बना जाए वहां बैठा बैठा, मान लो ये बी अनस्टेबल है तो इसने कुछ और बना दिया वहां पे, पहले बी बना, बाद में किसी और सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया, बाद में किसी और सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया बेटा। whenever the ion go at particular respective electrode, cation gain electron, anion lose electron, and they get deposited at the particular electrodes. They get deposited at the particular electrodes. But if they remain as such, the first change that occur, A positive is converting into A, B negative is converting into B. The first change that occur is called as what, primary change. But A is not stable, for example. A is not stable, मैं तो बैठा बैठा कुछ और बनाऊंगा मेरी मर्जी, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा, सेकेंडरी चेंज। जब वो प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस की डिटेल पढ़ेंगे तब अपन समझेंगे कि सेकेंडरी चेंज क्या होता है। क्या बेटा, सेकेंडरी। जो बेटा फर्स्ट चेंज होता है पर्टिकुलर आपके जो, जब आपका आयन मूव कर जाता है पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे और वहां पे जाके इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस से जो भी डिपॉजिट होता है वो प्राइमरी चेंज है। फर्स्ट चेंज जो प्राइमरी चेंज है, उसके बाद अगर किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाए बेटा, वो कहलाएगा कौन सा चेंज, वो कहलाएगा सेकेंडरी चेंज। वो कौन सा चेंज कहलाएगा बेटा, वो कहलाएगा सेकेंडरी चेंज।